رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم پرانے عہد نامے میں سے یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ انبیاء اکبر کی پہلی کتاب ہے اور آج ہم 41ویں باب کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے 40ویں باب کے آخری حصے کا مطالعہ کریں گے۔ ہم 40ویں باب کی 25ویں آیت سے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پچھلی قسط میں ہم یسایہ کے دوسرے حصے میں داخل ہوئے، جس کے اندر 40 تا 66 ابواب شامل ہیں، اور ہم نے جانا کہ یہ حصہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہر حصے میں 9 ابواب ہیں۔ پہلے 9 ابواب اسیری کے حوالے سے ہیں، قوم کی اسیری اور بحالی۔ پھر دوسرا حصہ مسیحا کے حوالے سے ہے، اور تیسرا حصہ آخری زمانے کی برکتوں اور مسیحا کی حکومت کے حوالے سے ہے۔ آج ہم 41ویں باب میں ایک مختلف موضوع کے حوالے سے بات کریں گے جو خدا کی انفرادیت اور قدرت سے متعلق ہے۔ لیکن آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ گزشتہ قسط میں ہم نے خدا کی قدرت کے حوالے سے بات کرنا شروع کیا، اس کے موقوف نہ ہونے والے فضل اور اس کی قدرت، اور خدا کے جلال کے اظہار اور اس کی انفرادیت، اور غیر معبودوں یا بتوں کے مقابلے اس کے ممتاز ہونے کے حوالے سے۔ بھائی یوسف، آج ہم 40ویں باب کی 25ویں آیت سے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ بائبل کہتی ہے، وہ قدوس فرماتا ہے کہ تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ بھائی یوسف، آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں اس میں خدا کو بطور خالق اور محافظ دیکھتا ہوں، اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ خدا جو بے مثال ہے، کسی بھی چیز کے مشابہ نہیں۔ اور کبھی کبھی جب ہم تثلیث میں وحدانیت کی بات کرتے ہیں، پر کچھ لوگ اس مکاشفہ کو رد کر دیتے ہیں۔ ہمیں دراصل اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا کس کے مشابہ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ خدا دراصل منفرد ہے۔ میرا مقصد تثلیث پر تفصیلاً بات کرنا ہرگز نہیں ہے، پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ خدا خالق ہے۔ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، اور خدا محافظ ہے، وہی جو ان کے لشکروں کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کی بازو کی توانائی کے سبب سے کوئی غیر حاضر نہیں۔ خدا خالق اور محافظ ہے۔ جی، اور وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو؟ مطلب کہ وہ دعوت دیتا ہے آسمانی لشکر کو، ستاروں اور سیاروں کو دیکھو۔ وہ خدا کی قدرت کی بات کرتا ہے بطور ایماندار۔ یہ میرے لیے کیسے حوصلہ بخش ہے کہ ایماندار کی منزل کی ضمانت ہے اور اسے سزا ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ میں 2 نتائج اخذ کر سکتا ہوں۔ ہم نے پہلے حصے میں دیکھا کہ خداوند یسوع کو چرواہے سے تشبیہ دی گئی، وہ چوپان کی مانند اپنا غلہ چرائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے یہی بات اپنے حق میں یوحنا 10 میں کہی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ وہ نہ صرف ستاروں اور سیاروں کو نام بنام پکارتا ہے، بلکہ وہ اپنی بھیڑوں کو بھی نام بنام بلاتا ہے۔ یعنی کہ جس طور پر خدا ہر ایک ستارے سے واقف ہے، وہ اپنی سب بھیڑوں کو بھی جانتا ہے۔ مسیح ہر ایک بھیڑ کو جانتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ غریب ایماندار کا موازنہ عظیم ستارے سے کر رہے ہیں، تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ میں غلط ہوں، کیونکہ غریب ایماندار خدا کی نظر میں عظیم ستارے سے زیادہ اہم ہے۔ وہ عظیم ستارے سے زیادہ اہم ہے کیونکہ اس بڑے ستارے کو خدا نے اپنے کلام سے تخلیق کیا ہے، لیکن مجھے اس نے اپنے لہو سے خریدا ہے، اور وہ خود میری پاکیزگی بنا ہے۔ اس کی نظر میں میں آسمان کے ستاروں سے زیادہ بیش قیمت ہوں، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس نے خود یوحنا 10 میں کہا، کوئی میرے ایمانداروں میری بھیڑوں کو میرے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں اور وہ اب تک کبھی بالکل ہلاک نہ ہوں گے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، اب میں آپ کے سامنے 27ویں آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ پس اے یعقوب تو کیوں یہ کہتا ہے، اے اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کہتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت خدا سے گزر گئی؟ کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدا ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔
वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवां की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदा उनका इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। ये अल्फाज ईमानदारों के हर दौर में हौसले का बाइस बने हैं। इन अल्फाज के वसीले हम कैसे हौसला अफजाई हासिल करते हैं? जी, शुरुआत में खुदावंद याकूब और इसराइल को तंबी करता है। वो ईमानदारों और मुझको और आपको मुतादिद बार तंबी करता है कि तू किस लिए कहता है कि मेरी राह खुदावंद से पोशीदा है, यानी खुदावंद मुझ पर तवज्जो नहीं दे रहा और मेरी अदालत खुदावंद से गुजरेगी, यानी कि खुदावंद की हर कही बात सही है सिवाय मेरे मामले के। और कई बार जब एक ईमानदार मुसीबत के दौर से गुजरता है तो हम ये अक्सर ही सुनते हैं कि खुदा मुनसिफ है पर मेरे लिए जालिम है और मेरी अदालत उससे गुजरेगी। खुदा सब कुछ करने पर कादिर है लेकिन मेरे लिए वो कादिर नहीं। बस ऐ याकूब तू क्यों ये कहता है, ऐ इसराइल तू किस लिए ऐसी बातें कहता है? क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदा अबदी और तमाम जमीन का खालिक है और वो थकता और मांद नहीं होता, उसकी हिकमत इदराक से बाहर है। और अगर हम ये जानते हों कि खुदा हर एक बात से वाकिफ है, मेरी मुश्किल से भी, और वो हर काम में कादिर है और वो मेरे हर बड़े से बड़े मसले को भी हल कर सकता है, और ना सिर्फ ये बल्कि वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवां की तवानाई को ज्यादा करता है, और ना सिर्फ ये कि उसके पास कुदरत है बल्कि दरअसल वो थके हुओं को जोर बख्शता है। और अगर हम थक चुके हैं तो हमें जाकर जोर हासिल करने की जरूरत है। वो थके हुओं को जोर बख्शता और नातवाओं की तवानाई को ज्यादा करता है। और फिर बात के आखिर में वो बहुत ही हैरान कुन बात कहता है, जवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, यानी कि नौजवान को हमेशा अपनी ताकत पर फख्र होता है। मतलब कहते हैं कि नौजवान कभी भी कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। लेकिन ये सच नहीं बल्कि जवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा भी हदूद रखते हैं, यानी कि भले ही वो बूढ़ों से ज्यादा ताकतवर हैं पर उस ताकत की भी कोई हद है। लेकिन मैं कहूंगा कि खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों परों से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांद ना होंगे। और किसी ने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि वो उड़ने, दौड़ने और चलने की बात करता है। देखें, हम ये तवक्को करते हैं कि जो नया जोर पाएंगे वो चलने से शुरू करेंगे और फिर दौड़ेंगे और फिर आखिर में वो उड़ेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि एक बार जो मसीही तजर्बे में मसीह को जान लेता है वो जोशीला हो जाता है और वो उड़ने लगता है, लेकिन साथ ही उसको भागना भी पड़ता है। लेकिन जब वो इख्तिताम पर पहुंचता है तो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, जैसा कि हिजकिय्याह अपने गीत में कहता है, जब खुदा ने उसकी उम्र बढ़ाई मैं अपनी उम्र आहिस्ता आहिस्ता पूरी करूंगा। और खुदा के अजीम लोगों में से एक के मुतालिक जिसे खुदा ने देखा कि वो इस दुनिया का नहीं और खुदा ने उसे उठा लिया। हनूक खुदा के साथ साथ चल रहा था और यकीनन एक ईमानदार का चलना या फिर उड़ना अच्छी बात है। लेकिन हनूक की मानिंद खुदा के साथ साथ चलना किस कदर शानदार बात है। हनूक खुदा के साथ साथ चल रहा था। हमने जाना कि खुदा थका या मांदा नहीं होता, लेकिन हम मसीह के मुतालिक पढ़ते हैं कि वो थका मांदा उस कुएं के पास बैठ गया और एक मर्तबा वो थकन के बायस सो गया। क्या ये इस सच्चाई के मुतसादिम है कि मसीह खुदा है? जी, क्योंकि खुदा थकता या मांदा नहीं होता, जबकि मसीह यूहन्ना 4 में सफर से थक गया और कुएं के पास जा बैठा। तो क्या मसीह खुदा है या नहीं? देखें, नाजरीन में से कुछ का मसला ये है कि जब हम मसीह के खुदा होने की बात करते हैं जो इंसान हैं, तब वो नहीं समझते। ये बात समझ से बालातर है। लेकिन हमें इसे मुकम्मल तौर पर समझना होगा कि खुदा की जात में इंसानियत इस तौर पर नहीं है कि वो मांद करती या उस पर गालिब आ जाती है, बल्कि खुदा की जात में इंसानियत थी, लेकिन वो उस पर मुमताज था और उससे जुदा ना था। हमें खुदा की जात की सिफात को पहचानना होगा। जिसने इंसानी सिफात को निगल ना लिया, यानी कि मसीह कलाम की हर रूह से खुदा है। वो अपनी तमाम सिफात के साथ खुदाए कामिल है और अपनी तमाम सिफात के साथ कामिल इंसान है। और इंसान होते हुए क्या वो थकता है? वो यकीनन थकता है, जैसा कि महदूद इंसान फितरी है, वरना मसीह इंसान ना होता। और ये एक बिदअत है कि मसीह जिस्म में जाहिर ना हुआ और इंसान ना बना।
मसीही के लिए ये बिद्दत है जो मसीह की अलूहियत के इनकार से कम नहीं है। जी, सो मसीह इंसान पहला है। यूहन्ना 4 भी बताता है। बिल्कुल। सो चूंकि मसीह इंसान है वो थक जाता है, क्योंकि वो इंसान है वो रोया, क्योंकि वो इंसान है वो सो गया, क्योंकि वो इंसान है वो मर गया, क्योंकि खुदा फक्त खुदा ही है और वो लाफानी है। लेकिन वो ऐसा इंसान था जो सिर्फ इंसान ना था, बल्कि मैं कहूँगा कि उसमें अलूहियत की सारी मामूरी सकूनत करती थी, और यही सच है। भले ही इंसान होते हुए वो सफर से थका मांदा हो गया, उसकी इंसानियत गुनाह से आजाद थी। उसी वाक्य में उसने सामरिया की उस औरत के राजों को जाहिर किया और उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। जिंदगी का पानी कौन दे सकता है? और खुदा के सिवा कौन है जो हर राज से वाकिफ है? सो ये साबित हुआ कि मसीह खुदा है। और उस वाक्य में भी जिसका जिक्र क्रिस्टीन ने किया, जब वो थका और कश्ती में पीछे की गद्दी पर सो गया, वो खुदा था जिसने समुद्र को डांटा कि साकिन हो जा और लहरों को थम जाने का हुक्म दिया और वहां बड़ा अमन हो गया। सो मसीह दर हकीकत कामिल इंसान था जो गुनाह से पाक था, लेकिन वो खुदा था जो जिस्म में जाहिर हुआ। बिल्कुल। भाई यूसुफ, अब मैं 41वें बाब की तरफ बढ़ूंगा और पेशतर के हम इसकी तफसील में जाएं। मैं चाहूंगा कि आप 41वें बाब को कोई उन्वान दें। देखिए भाई, 41वें बाब में मसीह और बुतों के दरमियान फर्क बताया गया है कि खुदावंद और बुतों के दरमियान कैसा बड़ा फर्क है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कहूँगा कि अगर आप चौथी आयत को देख लें कि ये किसने किया और इब्तदाई पुश्तों को तलब करके अंजाम दिया। मैं खुदावंद ने जो अव्वल और आखिर हूँ, मैं ही वो हूँ, और इसका मतलब है कि मैं अव्वल और आखिर हूँ और वो हर चीज़ की इब्तदा और वही हर चीज़ की इंतहा है और वही उसका सबब और अंजाम है। वो खुदा है। और अगली आयत में वो बुतों का जिक्र करता है। बड़ाई ने सोनार की और उसने जो हथौड़ी से साफ करता और उसकी नहत्ती पर पीटता है हिम्मत बढ़ाई, और कहा जोड़ तो अच्छा है। सो उन्होंने उसको मेखों से मजबूत किया ताकि वो कायम रहे। वो बुतों की बात करता है जिन्हें मजबूत करना पड़ता है ताकि गिर न जाएं। सो खुदावंद यानी यहोवा और उन बुतों के दरमियान कैसा बड़ा फर्क है। लेकिन अफसोस कि उस वक्त बाबल मजबूत ना था, वो बुतों पर इन्हिसार कर रहे थे। सो हम दूसरे हिस्से में बुतों के बारे में बहुत सी बातें सुनते हैं, क्योंकि उसमें बाबल का जिक्र है जो कि बुतों का गढ़ और किला समझा जाता था। जमानों के आगाज ही से बाइबल बुत परस्ती का गढ़ रहा है। भाई यूसुफ, 41वें बाब की पहली आयत से कुछ यूं मरकूम है, ए जजीरो मेरे हजूर खामोश रहो और उम्मते असरनो जोर हासिल करें, वो नजदीक आकर अर्ज करें, आओ हम मिलकर अदालत के लिए नजदीक हों। किसने मशरिक से इसको बर्बाद किया जिसको वो सदाकत से अपने कदमों में बुलाता है? वो कौमों को उसके हवाले करता और उसे बादशाहों पर मुसल्लत करता है और उनको खाक की मानिंद उसकी तलवार की उड़ती हुई भूसी की मानिंद उसकी कुमान के हवाले करता है। वो उनका पीछा करता और उस राह से जिस पर पेशतर कदम न रखा सलामत गुजरता है। ये किसने किया और इब्तदाई पेशों को तलब करके अंजाम दिया? मैं खुदावंद ने जो अव्वल और आखिर हूँ वो मैं ही हूँ। ये आयात किसकी बात करती हैं? खास तौर पर 2 ta 4 आयात खौरस की। हालांकि उसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन मैं कहूंगा कि 44वें बाब में उसका नाम जरूर आएगा, जो कि मैं कहूंगा कि कौम को बचाने और लोगों को बाबल की असीरी से निकालेगा। क्या खौरस फारसी है? मादी और फारस की सल्तनत बाबल की सल्तनत पर गालिब आएगी। आए हम मादी और फारस से मुतल्लिक हवाला जात देखेंगे, जबकि वो कहता है कि किसी ने मशरक से उसको बर्बाद किया। मशरक जिसका वो जिक्र करता है दर हकीकत वो फारस है, लेकिन यहाँ 25वीं आयत में भी वो ये कहता है कि मैंने शुमाल से एक को बर्बाद किया। यहाँ वो मादी की बात कर रहा है। वो मशरिक और शुमाल की बात करता क्योंकि उसकी मुराद दरअसल मादी और फारसी हैं, जो कि मैं कहूँगा कि अपने इत्तेहाद के वसीले शाह बाबल को और तख्त को गिरा डालेंगे। वो खास करके शाह फारस खौरस लोगों को बाबल की असीरी और गुलामी से बचाएगा। लेकिन सब सूरतों में वो उसका जिक्र करता है जिसने ये किया, जिसने मादी और फारस को बुलाया, यानी कि खुदावंद। ठीक है, सही। मैं चाहूंगा कि आप 5वीं आयत से तबसरा करें। जजीरों ने देखा और डर गए, जमीन के किनारे थरथरा गए, वो नजदीक आते गए, उनमें से हर एक ने अपने पड़ोसी की मदद की और भाई से कहा कि हौसला रख। बढ़ाई ने सुनार की और उसने जो हथौड़ी से साफ करता है उसकी जो नहानी पर पीटता है हिम्मत बढ़ाई और कहा जोड़ तो अच्छा है। सो उन्होंने उसको मेखों से मजबूत किया ताकि कायम रहे। हाथ के बनाए खुदा बामुकाबला जमीन और उसके इंतहा के मालिक खुदा के।
क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि ख़ास तौर पर बुतों को बनाया जाता है, और ख़ास करके जब हम 44वें बाब में पहुँचते हैं तो हमें तंज़िया अल्फाज मिलते हैं। एक इंसान एक बुत को बनाता है और उसके ही आगे गिर जाता है, और उसी दरख्त की लकड़ी पर गोश्त कबाब बनाता और उसको खाता, और फिर जब सर्दी लगती तो आग जलाकर कहता आह, यानी कि खुश वो होता है। खुश होता है, यानी कि उसी शय से उसने एक माबूद बनाया और उसी के आगे वो गिर जाता है और उसी से अपनी खुशी का सामान करता है और उसी से खुशी और इत्मीनान पाता है। और दूसरी आयत है, बुतों और देवताओं को उठाना पड़ता है, जबकि मैं कहूँगा कि खुदावंद हमारा हमें अपने कंधों पर उठा लेता है। दूसरी बात कि वो हमें कायम रखता है, जबकि पहली बार बाबल में जब बुतों का जिक्र किया गया तो वो चोरी हो गए। जी हाँ, जब लाबन ने याकूब से कहा तू मेरे बुत क्यों चुरा लाया, वो खुदा जो चुरा लिए गए और जिन्हें उठाया जाता है, और खुदा जिन्हें बनाया कैसे जाता दुख है। की बात है। सही। इंसान कैसा गरीब है, उस खुदा पर इन्हिसार क्यों ना किया जाए जो हमें बनाता, हमें उठाता और हमें अपने हाथों से तख्लीक करता है। आप अपना खुदा बना रहे हैं और उसे गिरने से बचाते हैं, और ये कैसे दुख की और अफसोस की बात है। जी ठीक है, आइए मेहमानों से सवाल जानते हैं। जिन अल्फाज का तज़किरा 10वीं आयत में किया गया, हम उनका मफ़हूम जानना चाहेंगे। तो मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा न हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। सदाकत के दाहिने हाथ से क्या मुराद है? और 14वीं आयत में लिखा है, हरासा न हो ए कीड़े याकूब, ए इसराइल की कलील जमात। कीड़े याकूब और इसराइल की जमात से क्या मुराद है? जी भाई यूसुफ, इन अल्फाज की वजाहत कीजिएगा। और जहां तक मेरी सदाकत के दाहिने हाथ का ताल्लुक है जो ताकत को जाहिर करता है, सो जब याकूब का सबसे छोटा बेटा पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसका नाम बनूनी रखा, लेकिन उसने बिन्यामीन। कहा कि नहीं। उसने कहा ये मेरे दाहिने हाथ का फर्जंद है, तो उसने उसका नाम बिन्यामीन रखा। दाहिना हाथ कुव्वत को जाहिर करता है और यकीनन खुदा कुव्वत कामिल रखता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ मेरी सदाकत के दाहिने हाथ से मुराद अदल और रास्ती है, यानी कि खुदा अपनी कुव्वत का इस्तेमाल लोगों पर जाहिर करने को नहीं करता, और ऐसा भी नहीं क्योंकि जब भी वो कोई काम सर अंजाम देता है तो वो सदाकत से करता है। सो जब उसने अपने लोगों को अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से कायम रखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने उसके गुनाहों को नजरअंदाज किया कि वो उसके लोग हैं, हरगिज नहीं। उसने अदल बिल्कुल को नहीं। पसे पुष्ट नहीं उसने डाला। अदल को अहमियत दी। कीड़े याकूब का मतलब है बे इंतहा कमजोर। उसने कीड़ों भी न कहा बल्कि कीड़े कहा, कीड़ों जैसा कमजोर। और खुदावंद इस कमजोर कीड़े से यहाँ पर ये कहता है कि हिरासा ना हो ए कीड़े याकूब। वो यहाँ पर उसे कीड़े कहता है। इसराइल की कलील जमात यानी कि शुमार में थोड़े अफरात, इसका मतलब है कि वो तादाद और कुव्वत दोनों में ही कम थे। लेकिन मत डर अपनी कमजोरी के बावजूद कि तू एक कीड़ा है और तू शुमार में कुछ भी नहीं है, तो भी मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी मदद करूंगा। और खुदावन ये फरमाता है। 14वीं आयत से देखा गया वो याकूब की कमजोरी की बात करता है, जी, लेकिन अगली आयत में उसकी ताकत का तस्करा है, यानी वो कमजोरी में ताकतवर है। देख, मैं तुझे गहाई का नया और तेज दंदानादार आला बनाऊंगा, तू पहाड़ों को कूटेगा और उनको रेजा रेजा करेगा और टीलों को भूसे की मानिंद बनाएगा। सो वो कमजोरी में ताकतवर कीड़ा, गहानी का दंदानादार आला, इसे हम किस तौर पर समझें? इसका मतलब है कि वो अपने आप में किस कदर कमजोर और खुदावन में किस कदर ताकतवर है। एक इंसान अपने आप में कमजोर है, लेकिन खुदावन ने पौलुस से ये कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है क्योंकि मेरी कुव्वत कमजोरी में पूरी होती है। और जिक्रिया 12वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि उस रोज खुदावन यरूशलेम के बाशिंदों की हमायत करेगा और उनमें सबसे कमजोर उस रोज दाऊद की मानिंद होगा। दाऊद का घराना खुदा की मानिंद। वो अपने आप में कैसे कमजोर हैं, लेकिन जब खुदावन जाहिर होता है तो उन्हें फतामंदी बख्शता है और वो कैसे ताकतवर होते हैं। और मैं कहूंगा कि ये सीखने की बात है क्योंकि हम अपने आप में कमजोर हैं लेकिन खुदा में जोरावर हैं। ये अल्फाज के तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ इन आयत में और गुज़िश्ता आयत में दोहराए गए हैं। सही। ये अल्फाज माजी में लोगों को हौसला बख्शते आए हैं और आज तक करोड़ों ईमानदारों को हर जमाने में हौसला देते रहे हैं। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इसका क्या मतलब है? 10वीं आयत में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और 13वीं आयत में, क्योंकि मैं कहूंगा मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। 14वीं आयत, हैरासा ना हो ऐ कीड़े याकूब। मत डर के अल्फाज बार बार दोहराए जाने से मैं दो बातें समझता हूँ। पहली बात यह कि इंसान कितनी आसानी से डर जाता है। किस बात से डरता है? वो हर बात से डरता है।
पतरस के लिए लिखा है कि उसने एक दफा हवा को देखा तो वो डर गया, मतलब कि वो हवा से डरा। और एलिया जो एक अजीम और मजबूत शख्स था, जब उसने एक पैगाम को सुना तो वो डर गया। हालांकि उसने सिर्फ इज़ाबेल के पैगाम को सुना था, उसने ना देखा पर डर गया। सो इंसान खौफ खा सकता है। सो अब्राहम को भी खुदा ने पहली बार कहा खौफ ना कर। सो इंसान खौफ खा सकता है, इसीलिए खौफ ना करके अल्फाज बाइबल में बहुत बार आए हैं। लेकिन भरोसे और तसल्ली का मंबा यीशु है और सारा जलाल उसको मिले। सो उसने कहा मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ। और फिर उसने कहा और जिंदा हूँ, मैं मर गया था और देख मैं अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, मतलब कि हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा है कि खुदावंद मुझसे कहता है कि तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और मैं उससे ये कहता हूँ कि मैं किसी बला से न डरूंगा तू मेरे साथ है। ये जवाब है खुदा की हजूरी और उसकी फिक्र का नतीजा है। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ, आपके हमरा मुताले का बहुत लुत्फ आया, और अच्छा है कि हम खुदा के कलाम पर भरोसा करें जो कहता है कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। हमने किस्त की शुरुआत में 40वें बाब के आखिरी हिस्से में खुदा की सिफात के मुतालिक जाना कि वो थकता नहीं या मांदा नहीं होता। लेकिन एक सवाल ये भी था कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि मसीह खुदा है जबकि वो सफर में थका। आप में से कौन इस सवाल का जवाब दे सकता है? जी, जब मसीह ज़मीन पर था वो कामिल खुदा था और साथ वो कामिल इंसान भी था। खुदा होते हुए वो थकता या मांदा नहीं होता, लेकिन साथ ही वो कामिल इंसान भी था। सो इंसान होते हुए वो थका, उसे भूख लगी, वो सोया, वो रोया। सो वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। लिहाजा उसी वाक़े में जिसमें वो थका, उसने खुदा होते हुए समुद्र को डांटा कि साकिन हो जा। वो बैक वक्त दोनों है। जी, मसीह इंसानियत और अलूहियत दोनों में कामिल है, और उसकी इंसानियत जो गुनाह से आज़ाद है जाहिर हुई। भाई यूसुफ, और उनमें मुआफ़क़त कायम रहती है जो इंसानी इदराक से बाहर है। जी, ये नामुमकिन है कि महदूद इंसानी जहन खुदा के मुतालिक हर बात है। मुकम्मल तौर पर समझ पाए। जी, हमने 41वें बाब में अब्दी और आम कामिल रखने वाले खुदा और हाथ के बनाए हुए खुदाओं के दरमियान फ़र्क देखा। क्या कोई बता सकता है कि वो फ़र्क क्या है? दरअसल कोई मुआसना ही नहीं है, क्योंकि खुदा खालिक है जबकि बुत लोगों के हाथ के बनाए हैं। और ऐसे शख्स के लिए तंजिया अल्फाज कहे गए जिसने एक ही दरख्त से बुत भी तराशा और उसी से खाना पकाने और गर्म रखने के लिए लकड़ी भी ली। खुदा हमें कायम रखता है जबकि बुतों को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाया जाता है। और बाइबल में हम पहली मर्तबा बुतों के मुतालिक तब पढ़ते हैं जबकि राखिल ने अपने बाप के बुतों को चुरा लिया, जबकि खुदावंद है जो हमें कायम रखता है और हमारी हिफाजत करता है। सही, इंसानों के बनाए खुदाओं को उठाया जाता है और उन्हें हिफाजत की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब्दी खुदा जो खालिक और मुहाफिज है सब चीज़ों को कायम रखता है। क्या कहेंगे भाई यूसुफ? ठीक है। आखिरी हिस्से में जिसका हमने मुताला किया याकूब और इस्राएल के हवाले से लिखा हुआ है। कीड़े याकूब, इसराइल की कलील जमात एक कमजोर अक्स है, लेकिन उसे गहाई का तेज आला भी कहा गया जो एक ताकतवर अक्स है। इन दोनों सूरतों में क्या नजर आता है? कीड़े याकूब की इंतहाई कमजोर हालत को जाहिर करता है और इसराइल की कलील जमात उनके शुमार में थोड़ा होने को जाहिर करता है। लेकिन खुदा उनसे कहता है कि मत डरो। इंसान अपनी कमजोरी और शुमार में थोड़े होने के बावजूद खुदा की हजूरी के वसीले से गहाई का तेज आला बन गए। सही, शुक्रिया बिल्कुल भाई यूसुफ। सही, ठीक है। सबने ठीक खुदा कहा। का शुक्र हो। आप सबका शुक्रिया। भाई यूसुफ, आपका भी शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे।